Hello students, I am Pavanjan. Today I will teach you very important chapter of class 11, that is sets, which is important because it is also used in class 12 many chapters like relations and functions. So I will give you the concept of sets, which is very easy. Sets. पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे। सेट होता क्या है? व्हाट इज सेट? इंट्रोडक्शन। सेट क्या होता है? आपने टर्म ये तो सुनी होगी, कलेक्शन एंड सेट। तो कलेक्शन की बात करूँ अगर मैं, तो कलेक्शन तो किसी का भी कर सकते हैं हम, कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं हम। जब सेट की बात करते हैं तो सेट क्या होता है? collection of well-defined objects. Collection of well-defined objects is called sets. It is denoted by capital letters like A, B, C and so on, and elements which belongs this set, and elements which belongs the set are denoted by small letters, are denoted by small letters like A, B, C, small a, small b, small c and so on. ओके, तो मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूं आपसे, कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। एक्चुअली व्हाट डज मीन वेल डिफाइंड? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन इज वेल, कलेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो कलेक्शन तो कुछ भी हो सकता है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो समझाऊंगा। This is a meaning आ रहा है पर well defined. What does it mean? Well defined means undoubtedly we can say that a particular object belongs to a particular set or not, or we can say it will be a universal truth. It does not vary from one person to other person. I'm taking some examples. Set A is equal to collection of vowels in English alphabet. In English alphabet. ओके, तो वर्ड में आप जाएंगे, किसी को भी पूछिए इसके कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. This does not vary one person to other person, because मैं कहूंगा A, E, I, O, U, ये होते हैं vowels, आप कहेंगे A, E, I, O, U, ये होते हैं vowels. So this is a set. This is a set. और एक एग्जांपल लेते हैं, let B is equal to collection of even prime numbers. Collection of even prime numbers क्या होते हैं? Only two. It is also universal truth. Undoubtedly we can say this is a set. Okay? और एक एग्जांपल ले लीजिए, collection of natural numbers between 2 and 8, and what you can say 3, 4, 5, 6, 7. So this does not vary one person to other person. Okay,
अब एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, ये बताइए कि सेट है कि नहीं। डी मान लेता हूं, सेट ऑफ गुड टीचर्स इन RSPS पब्लिक स्कूल। Set of good teachers in RSPS school. Who will define good? For one students, a particular teacher may be good, but for other students, that particular teacher is maybe not good. So good is not well defined. What is the example? Set of good dancers, famous dancers in India. Famous dancers in India. This is also not set because famous, who will define famous? Someone may be famous for me and it is not famous for other person. It clear? So it is not a set. So डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट्स। कलेक्शन एंड सेट में डिफरेंस क्या है? कलेक्शन तो हम किसी का भी ले सकते हैं, कोई भी कलेक्शन बना सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का बना सकते हैं, लेकिन जब सेट की बात करेंगे तो इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स अनडाउटेडली वन कैन से यस दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस सेट। ओके, तो एवरी सेट इज ए कलेक्शन, but every collection is not a set. Every set is a collection. This is also a collection. This is also a set. This is also a collection. This is also a set. But it is a collection. Collection तो हो सकता है, हम गुड टीचर्स जो भी जिसकी है, जो भी जिसको चाहता है उसको हम कलेक्शन बना लेंगे, लेकिन इसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, इसलिए इट इज नॉट अ सेट। इज इट क्लियर? तो दिस इज द, तो मैं समझता हूँ सेट्स आपको समझ में आ गया होगा। सेट एक्चुअली होता क्या है, आगे बढ़ते हैं। एक जनरली हम टर्म यूज करेंगे, वहां कई बार यूज करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या है? दिस इज सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। belongs to means कि any particular element belongs to a particular set or not, और अगर हम इसी को कट कर दें तो ये कहलाएगा does not belongs to। does not belongs to, for example A is equal to set 1 3 4। अब मैं कहूं कि 1 is belongs to A, yes 1 is present in this set A, so 1 belongs to A। अगर मैं कहूं कि 5 belongs to A, क्या 5 इस सेट में है, प्रेजेंट है? नहीं है ना, इसलिए 5 does not belong to set A। तो belongs कई बार यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, हमेशा यूज करेंगे, मैथ्स में कई जगह यूज करेंगे। तो जब हम कैपिटल एन अगर लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स। जब डब्ल्यू की बात करेंगे, इट इज होल नंबर्स। जब जेड की बात करेंगे, इंटीजर्स। जेड प्लस की बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। जब जेड माइनस की बात करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। जब हम क्यू की बात करेंगे, रेशनल नंबर्स। जब हम Q प्लस की बात करेंगे तो इट इज अ पॉजिटिव
रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। क्यू माइनस की बात करेंगे, इट इज नेगेटिव रियल नंबर्स, सॉरी नेगेटिव रेशनल नंबर्स। जब आर की बात करेंगे, इट इज रियल नंबर्स। आर प्लस की बात करेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स। जब आर माइनस की बात करेंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स। जब हम सी की बात करेंगे, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो these are some notations which we will use in not in this chapter only, but we will use in many chapters. Okay? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट कैन बी represented in two methods. One is roster method, or this is also known as tabular method. In this method, set is represented by listing all elements separated by comma, separated by commas, enclosed within curly brackets. Okay, in this method, set is represented by listing all elements separated by commas and closed within curly brackets. For example, suppose A set है आपका set of positive integers less than 4, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 4। देखिए इसको किस तरह से रोस्टर मेथड में लिखेंगे, तो लेस देन 4 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, यस 1, 2, 3, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 4। सो 1, 2, 3 कॉमा के साथ और कर्ली ब्रैकेट में इसको एनक्लोज कर दिया, तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। सेकंड आपका सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं भाई, प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। In this method, set is represented. In this method, set is represented by means of some property of its elements. इस मेथड में क्या करते हैं, डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी किस टाइप के क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन का सेट का। जैसे मान लीजिए ए हमने लिखा सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, less than 20 set of sorry, तो दिस इज ये कौन सी फॉर्म है आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिखना था, लेकिन हमने क्या लिया इसमें, इसका जस्ट पहले हमको लेना पड़ेगा इसमें रोस्टर फॉर्म में, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे इसको। मान लीजिए मैं लिखा 4
6 8 9 10 12 14 15। अब आपको इसमें कुछ प्रॉपर्टी नजर आ रही है। 4 6 8 9 10 12 14 15। These all are composite numbers। तो उसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? x such that x is a composite number less than or equal to 15। इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं x such that x is a composite number less than or equal to 15। अदर एग्जांपल b is equal to, मैंने एक सेट लिया 2 4 6 8 10। ओके, अब इस सेट आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है? रोस्टर फॉर्म में। आपको ये लिस्टिंग एलिमेंट्स है, इसको कन्वर्ट करना है अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज आपको कुछ नजर आ रही है। यस, आइदर यू कैन से दीज आर द इवन नंबर्स लेस देन 12, और फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से लिख सकता हूं उसको मैं, x such that x is equal to 2n, n belongs to natural number और n is less than or equal to 5। ये देखिए 2 4 6 8 10 हमको दिख रहा है कि इवन नंबर से या मल्टीपल ऑफ 2 है, तो x such that x is equal to 2n, n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर कहां तक है? लेस देन 5। तो आप 1 पुट करेंगे 2 into 1 फर्स्ट मेंबर आ जाएगा आपका। जब 2 पुट करेंगे तो 2 2 या 4 सेकंड मेंबर आ जाएगा। 3 पुट करेंगे 4 पुट करेंगे और लास्ट में 5 पुट करेंगे 2 into 5 10। तो दिस इज द सेट बिल्डर मेथड एंड दिस इज लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग से सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेट बिल्डर मेथड से रोस्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कैन यू डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मेरे को और बतानी थी, नोट करके लिख दीजिए। नोट फर्स्ट, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमैटेरियल। मतलब कि सेट्स में रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं है, हम उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन रोस्टर मेथड इज इमैटेरियल। मतलब रिपीटिशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा ये 1 2 3 1 2 3 4, तो देखिए 1 दो बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, तो इट इज इक्वल टू 1 2 3 4। सिंपली इसका मतलब ये बोथ आर सेम, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। कोई मतलब नहीं है उसका, रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं है, एक ही बार काउंट किया जाएगा। सेकंड नोट है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑल्सो इमैटेरियल। मतलब ऑर्डर कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही सेट था, इसको मैं लिख सकता हूं 4 3 2 1, या लिख सकता हूं 3 2 1 4। तो ऑर्डर की यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रिमेंबर, सेट्स में ही ऐसा है, लेकिन रिलेशन में जो आपने पढ़ा था ऑर्डर पेयर, तो उसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस थी। बताया था हमने आपको कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये इक्वल नहीं थे, ये हमने रिलेशन में बात की थी। बिकॉज ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी।
ये रिलेशन फंक्शन में अलाउ नहीं है, लेकिन सेट्स में ऐसा ही है। सेट्स में हम क्या करते हैं, ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं लेते सेट्स में, लेकिन जब आप रिलेशन पढ़ाएंगे तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स। फर्स्ट एम्प्टी सेट और नल सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स। जिस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं या नल सेट बोलते हैं। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स एट ऑल is called empty set. It is denoted by 5, या तो 5 से डिनोट करेंगे या एक सिंपली कर्ली ब्रैकेट छोड़ देंगे, एम्प्टी ब्रैकेट। एम्प्टी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। तो याद है, वी डिनोटेड बाई 5, इसको बोलते हैं 5, PHI 5, और सिंपली ब्रैकेट, एम्प्टी ब्रैकेट। ओके, इसके एग्जांपल बता सकते हैं? A is equal to 1, 2, 3, 4। मैं यहां पर कह रहा हूं सेट A which has more than 5 elements। मोर देन 5 तो इसमें कोई है ही नहीं, इसलिए ये क्या होगा? आपका नल सेट होगा। इज अ नल सेट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सेकंड लेते हैं सिंगलटन सेट। अ सेट, इसके नाम से क्लियर है, अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अ सेट which has only one element is called singleton set। एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए। 3, A is equal to 3, सिंगल एलिमेंट है, वन एलिमेंट है, सो सिंपली दिस इज अ सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट, a set in which elements can be counted। वो सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल A is equal to 3, 4, 6, 7, 8 up to 100। तो इस टाइप का सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। इसको हम काउंट कर सकते हैं 100 तक। मार्क्स 3 से लेकर कहां तक है? 100 तक है, हम काउंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के सेट को क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। तो क्या आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, a set in which elements cannot be counted is called infinite set। For example, ये इसको ले लिया मैंने 1, 2, 3 and so on कर दिया। लास्ट में कोई नंबर लिमिट नहीं है इसकी, कोई एंड नहीं है इसका, तो उसको काउंट करते जाएंगे, इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो इस टाइप का सेट इनफाइनाइट, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? फाइनाइट सेट्स। क्लियर?
नेक्स्ट equivalent sets. Equivalent sets. Two sets are said to be equivalent if their number of elements are equal. अगर दो सेट है आपके तो टू सेट्स A and B are said to be equivalent if their cardinal numbers are same. ये भी कह सकते हैं आप their cardinal numbers are equal. Cardinal number means number of elements. For example, एक सेट है आपका A जिसमें है एलिमेंट्स 1 2 4. एक सेट है आपका B जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 3. सो दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equal to number of element in set B. So these are called equivalent set. जिसमें नंबर देखते हैं उसमें नंबर इक्वल होते रहेगा तो वो क्या होते हैं इक्विवेलेंट सेट होते हैं. कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इक्वल so these are called equivalent sets. नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट. Two sets A and B are said to be equal if their elements are same. Their elements are same. इसमें एलिमेंट सेम होना चाहिए और इसमें नंबर इक्वल होने चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू A B C एंड B इज इक्वल टू C B A. A प्रेजेंट A में B में भी प्रेजेंट है. B सेट A में भी प्रेजेंट है सेट B में भी प्रेजेंट है. C सेट A में भी प्रेजेंट है और सेट C में भी प्रेजेंट है. इसका मतलब ये दोनों सेट्स कैसे कहलाएंगे इक्वल सेट्स. सो इस पर लिखेंगे हम राइट A इज इक्वल टू B. तो ये इक्वल सेट्स ये टाइप ऑफ सेट्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद सबसेट्स. अब आएगा आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन. इज इट क्लियर? या तो कोई डाउट? नो. चलिए